cheerful morning, children. Today we are going to start sixth chapter as our third chapter. Okay, so previously we had done the fascinating ruin, Rikki Tikki Tavi, Topsy Turvy Land poem, and now we are going to start the next chapter as chapter number 6, The Fool and the Fly. The Fool and the Fly. The story which we are going to know about is The Fool and the Fly. So children, if you have books, kindly open your books at page number 67. Okay, page number 67. Now let us do the warm up exercise here. So The Fool and the Fly means the story between a foolish man and a fly. Let us see what it is. Work in pairs, answer the following riddles. Yes, riddles क्या होते हैं children? Riddles are nothing but पहेलियाँ, means a puzzle to be solved. People buy me to eat but never eat me. What am I? Yes, people always used to buy me for what? To eat. खाने के लिए खरीदते हैं but never eat me. कभी खाते तो है ही नहीं इसमें. What am I? ऐसा कौन सी चीज़ है जो पीपल खरीदते हैं खाने के लिए फिर भी कभी खाते ही नहीं है? दैट इज़ नथिंग बट अ प्लेट. द प्लेट इन विच वी ईट, जिस प्लेट में हम खाते हैं ना, दैट इज़. सो ये रिडल है, इसमें आपको टैक्टफुली सोच के आंसर बतानी पड़ती है. ओके. सेकेंड वन, वॉट अकर्स वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन 1000 years. सो read the question again carefully children. What occurs, ऐसा कौन सा चीज़ आता है once in a minute, मिनट में एक बार आता है. twice in a moment, moment means पल, एक पल में दो बार आता है. and never in 1000 years, पूरा हज़ारों सालों में तो never means कभी भी नहीं आता है. never means कभी भी. सो नेवर इन 1000 years, 1000 years में कभी नहीं आता है. और एक पल में दो बार आ जाता है. और वंस इन अ मिनट, एक मिनट में एक ही बार आता है. व्हाट इट इज़. सो ऐसा सोचो तो आपको आंसर नहीं आएगा. इसमें आपको किस पे फोकस करनी है? ऑन द वर्ड्स. वंस इन अ मिनट, मिनट में MINUTE, ओनली वन M इज़ देयर. ट्वाइस इन अ मोमेंट, मोमेंट में MOMENT, MOMENT. M कितने बार आया? M कितने बार आया? 2 times. एंड नेवर इन 1000 years. सो 1000 years की स्पेलिंग पे फोकस करिए आप. 1000 years में कहीं M आया क्या? नो. सो नेवर इन 1000 years, 1000 years में जो कभी नहीं आता है. सो ऐसी क्या चीज़ है? द लेटर M लेटर मिनट में वंस आया, मोमेंट में ट्वाइस आया, एंड 1000 years की स्पेलिंग में 1000 years में तो कहीं है ही नहीं M. That's why. So these are riddles. Riddles means a puzzle which to be solved. So hope all of you enjoyed these 2 puzzles. So let us start with the reading. Let us move ahead and start reading. Read this story about a clever boy. So this story is about a clever boy, children. A boy who is very clever and he could have done something cleverly using his mind. So we are going to learn about it. One day a rich man went to see a peasant who owed him money. So children, one day, एक दिन, a rich man, एक बहुत अमीर आदमी, went to see, किसी को देखने गया था. किसको देखने गया था? a peasant, PEASANT. peasant का मतलब होता है बेटा पुअर फार्मर. एक रिच मैन एक पुअर फार्मर को देखने गया था. क्यों गया था? देयर मे बी सम वर्क विथ हिम. who owed him money, who owed him, owed means to repay, in return for something. मतलब आपने अगर किसी से कुछ उधार लिया हो और वापस वो कर्ज चुकानी पड़ती है. सो टू रीपे मतलब ये रिच मैन ने शायद वो पुअर मैन को कुछ पैसे दिए होंगे. सो वो पैसे के बारे में बात करने वो उनके घर गया था. आउटसाइड द peasant's cottage he saw a little boy playing in the dirt. Outside the peasant's cottage means ये poor boy, ये poor man, poor farmer की
घर के बाहर, घर मीन्स कॉटेज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉटेज, क्या है बेटा, अ स्मॉल हाउस, जैसा एक झोपड़ी है, दिख रही है ना अपन को इस पिक में, वी कैन सी दैट वेरी क्लियरली अ रिच मैन हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर, सी हाउ कैन वी से ही इज़ वेल ड्रेस्ड एंड बहुत अच्छा से ड्रेसअप किया, तो ऑब्वियसली वी कैन से वो अच्छा शूज़ पहना हुआ है, तो ही इज़ अ रिच मैन। एंड इधर एक छोटा सा झोपड़ी दिख रही है आपको, एंड अ लिटिल बॉय हु इज़ प्लेइंग इन द डर्ट, डर्ट में खेल रहा था वो। Where are your parents, boy? He asked. Then the rich man asked to that boy, where are your parents? The boy did not look up from his sticks and stones. The boy did not look up. Boy तो बिल्कुल अपना सर उठा के भी नहीं देखा था. From his sticks and stones. बेटा sticks and stones, this is a phrasal word. ये एक phrase है. Phrase means a group of words which have some meaning. Okay. So इसमें sticks and stones ये तीनों को एक phrase माना जाता है. So the meaning of sticks and stones is nothing but playing with things he found on the ground. So he is playing on the dirt. देखो घर के बाहर ग्राउंड पे वो खेल रहा था with the dirt. So he is playing with all the things what he found on the ground, and he is very busy in playing and he didn't give any reply to the rich man's question. rich man की question का कोई reply नहीं दिया. फिर उसने क्या किया, अपनी सर उठाने के बिना एक आंसर दिया. क्या दिया? They have not come back home at. यस, वो लोग अभी तक घर नहीं आए थे. एट मीन्स सो फार, स्टिल नाउ, मीन्स अभी तक तो वो घर ही नहीं आए थे. ही रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है बेटा ही आंसर्ड. द बॉय आंसर्ड हिम दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट बैक टू होम. वेयर हैव दे गॉन? द मैन डिमांडेड. वेयर हैव दे गॉन? वेयर आर योर पेरेंट्स? वेयर हैव दे गॉन? ये पूछा था वो मैन. कैसा? डिमांडिंग. डिमांडिंग मीन्स कमांडिंग, ऑर्डर दे रहा था, जैसा कि इंक्वायरी कर रही, जैसा उससे पूछ रही कि वेयर दे आर, जल्दी बोलो कहाँ गए थे वो. नाउ द बॉय लुकड अप एंड स्टडीड द रिच मैन. अभी वो लड़का जब ऐसा कुछ डिमांड करने लग गया तो अपना सर उठा के ऊपर देखा एंड रिच मैन को स्टडी किया. रिच मैन को स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता है ना उसके बारे में वो कुछ पढ़ रहा है या लिख रहा है. नो, ही इज़ ऑब्जर्विंग द मैन केयरफुली. वो रिच मैन को ध्यान से देख रहा था. वेल, अच्छा आप आए हो क्या? ही आंसर्ड. ही आंसर्ड. अभी वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? माई फादर हैज़ गॉन टू कट लिविंग ट्रीज एंड प्लांट डेड वंस. यस, मेरे पापा, माई फादर हैज़ गॉन, कहाँ गए थे? टू कट लिविंग ट्रीज, अच्छा जिंदा हुआ पेड़ों को काटने गए थे मेरे पापा. एंड प्लांट डेड वंस, जो मरे हुए हैं उनको प्लांटेशन करने गए थे. देखो कैसा आंसर दिया उसने. अगेन रीड द सेंटेंस. माई फादर हैज़ गॉन to cut the living trees. He wants to cut the living trees and he wants to plant the dead ones. Dead trees means dead plants. Nonsense, he cried. फिर ऐसा उल्टा सीधा ही तो बोला ये बच्चा ने. तो नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स बकवास मत करना नहीं बोलते हैं हम, दैट इज़ द मीनिंग. क्या बोल रहे हो? ही क्राइड मीन्स वो चिल्लाया था. क्राइड मीन्स वो रोने वाला रोना नहीं, वो गुस्सा से चिल्लाया. एंड्रेज्ड, एंड्रेज्ड मीन्स बहुत गुस्सा होना. इन एंगर, एंगर में, गुस्सा में वो चिल्लाया. वेयर इज़ योर मदर? ठीक है पापा कहीं गए तो मुझे कोई मतलब नहीं. वेयर इज़ योर मदर? वेयर इज़ योर ममा? शी इज़ एट द मार्केट सेलिंग द विंड एंड बाइंग द मून. क्या आंसर दिया देखो बच्चा ने. शी इज़ एट द मार्केट, वो मार्केट में है. और व्हाट शी इज़ डूइंग? शी इज़ सेलिंग द विंड, हवा को बेच रही है. एंड बाइंग द मून, मून को खरीदने के लिए. हवा को बेच के जो पैसे आएंगे उससे वो मून खरीदना चाहती है. ऐसा कहीं हो सकता है क्या? हाँ, हवा को कोई बेचते हैं या मून को खरीद के ला सकते हैं हम. बट पता नहीं why he is saying in that way. My mother is at the market and she is selling the wind so that she can buy the moon. This is the answer given by the boy. That's ridiculous, he shouted. अब तो इसकी बहुत गुस्सा आने लगी ये रिच मैन को. So what he told, that's ridiculous. ridiculous का मतलब होता है बेटा impossible, मतलब जो हो ही नहीं सकता है. ऐसा नॉनसेंस जो बातें बोलते हैं इसको बोलते हैं रिडिक्यूलस. मीन्स सिली, ये क्या बातें कर रहे हो, मतलब सिली सिली क्या आंसर्स दे रहे हो तुम, जो हो ही नहीं सकते हैं ऐसा क्या आंसर्स दे रहे हो. ही शाउटेड, चिल्लाया जोर से. ही वॉज नाउ फ्यूरियस. अंडरलाइन द वर्ड FURIOUS. फ्यूरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, मतलब उसको बहुत तेज़ गुस्सा आया अब तो. ही वॉज फ्यूरियस, बहुत गुस्सा आया था.
Tell me where your parents really are. Yes, now I want to know where your parents are. Tell me the truth, where they have been. जल्दी से बोलो अभी आप वो कहाँ गए थे. Then the boy calmly repeated. Then what happened? The boy calmly repeated. उसने बहुत धीरे से आराम से शांति से बोला. क्या बोला? My father has gone to cut living trees and plant dead ones. Same line. My father has gone to cut living trees. Living trees काटना है and plant dead ones. Dead ones को plantation करनी है उनको. My mother is at the market selling the wind and buying the moon. Means जो lines पहले इसने बोला as it is lines वो भी very calmly, very quietly he is giving the answer. Listen, the rich man said. Then what he said? Listen to me. Your parents owe me a lot of money. Oh मतलब पहले ही बोला ना मैंने आपको, टू रीपे इन रिटर्न फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए आपको रीपे करना जो पड़ता है. ओके, सो ही यार पेरेंट्स, आपकी ही पेरेंट्स मुझे बहुत सारा ए लॉट ऑफ मनी, खूब सारा अमाउंट, मतलब खूब सारे अमाउंट उनको मुझे रीपे करना था. बट इफ़ यू टेल मी वेयर द रियली आर, अगर बट फिर भी अगर आपने बोल दिया वेयर द रियली आर, सही में वो कहाँ हैं, आई विल गो होम एंड फॉरगेट अबाउट द डेप्ट, मैं अभी का अभी घर चला जाता हूँ. एंड इवन आई विल फॉरगेट अबाउट द डेप्ट. डेप्ट का मतलब होता है बेटा कर्ज, मतलब जो भी पैसा इसने दिया हो, इन लोग को कर्ज, इन ये पॉर पेजेंट ने कुछ पैसा लिया होगा और वो पैसा वापस पे करना था. बट रियल में ये रिच मैन बोल रहा है कि इफ़ यू आर गोइंग टू से वेयर दे आर रियली, अगर सच्ची सच्ची आप बता दिया तो आई एम गोइंग टू फॉरगेट अबाउट माई डेप्ट, मैं वो पैसे की बात ही भूल जाऊँगा. आर यू सीरियस आस्क्ड द बॉय. तुरंत वो बॉय ने पूछा था, आप सही बोल रहे हो, सीरियसली बोल रहे हो क्या? आई डोंट मेक जोक्स, द रिच मैन आंसर्ड. येस, मैं कोई मजाक नहीं करता हूँ. आई एम वेरी सीरियस, सेड द रिच मैन. वेरी वेल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सेड द बॉय. बट वी नीड अ विटनेस टू आवर अग्रीमेंट. So we need a witness, underline the word witness and even agreement too. So witness का मतलब क्या होता है बेटा? अ पर्सन हु सीज एन इवेंट टेक प्लेस, मतलब जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है उसको आमने सामने अगर किसी ने देखा हो वो इंसिडेंट होते हुए, दैट इज़ व्हाट इज़ विटनेस मीन्स. ओके, टू आर अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मीन्स दो पर्सन या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो जॉइंट डिसीजन लिया जाता है, वट एवर द डिसीजन दैट वी यूज़ टू टेक अमंग द पीपल, दैट यूज़ टू बी टेकन अमंग द पीपल, मतलब दो पर्सनस हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं. ऐसा जॉइंटली अगर किसी ने कोई डिसीजन लिया देन वील कॉल इट एज एन एग्रीमेंट. सो ये बोल रहा है कि मतलब इन्होंने क्या बोला रिच मैन ने, इफ़ यू से रियली वेयर दे आर आई एम गोइंग टू फॉरगेट अबाउट द मनी. So then what the child told, yes, we need a witness, we need a person who is going to listen about the agreement, about the joint decision we are going to take. And so ये witness का मतलब समझ में आया ना बेटा आपको? गवाह जो बोलते हो, सबूत कुछ चाहिए, है ना. then just then इसी टाइम पे a fly landed on a bamboo pole. Yes, you can see bamboo pole nearby in the picture. We can see a bamboo pole near the rich man. rich man के आमने सामने में एक bamboo pole है. उसी टाइम पे उस पोल पे एक छोटा सा मक्खी आके बैठी है. fly, you know what is a fly? मक्खी, the man said. तुरंत उसने बोला the fly can be our witness. yes, definitely, इसी fly को हम witness क्यों नहीं बनाए. टेल मी वेयर योर पेरेंट्स आर एंड आई विल फॉरगेट देयर डेप्ट. ओके, जल्दी से बताओ आपके पेरेंट्स कहाँ हैं एंड आई विल फॉरगेट देयर डेप्ट. उन्होंने जो उधार लिया, आई विल जस्ट फॉरगेट अबाउट द मनी विच आई हैव गिवन टू देम. अ फ्लाई कैन बी ए गुड विटनेस, सेड द बॉय पेंसिवली. यस, अ फ्लाई कैन बी ए गुड विटनेस. यस, एक मक्खी तो बहुत अच्छा विटनेस होगा, सेड द बॉय. बॉय ने बोला, कैसा बोला? पेंसिवली. पेंसिवली मतलब थिंकिंग वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सोचा, इसको कुछ लगा होगा तभी तो बोला कि हाँ बहुत अच्छी बात है, फ्लाई अगर एक विटनेस बनेगी. क्योंकि कहीं फ्लाई विटनेस हो सकता है क्या चिल्ड्रन? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन वी मेक अ फ्लाई एज एन विटनेस? No, because it can't speak, it can't say anything, then how can we make it as a witness? But still I don't know why these two people has agreed a fly as a witness.
दिस इज़ माई आंसर। ओके, चलो फ्लाई अपना विटनेस है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर। माई फादर हैज़ गॉन टू कट डाउन बैम्बू। मेरे पापा कहाँ गए थे? ही वेंट टू कट डाउन बैम्बू। बैम्बू ट्रीज होते हैं ना, जिससे बैम्बू स्टिक मिलता है हमको, सो वो कट करने गए थे। टू मेक अ फेंस विद देम, सो उसी से मेरे पापा एक फेंस बनाना चाहते हैं। फेंस क्या है बेटा? बाहर कहीं पे रेलिंग या बैरियर बैरियर बनाते हैं ना, जैसे आपकी घर के सामने को थोड़ा सा स्पेस हो, यू आर जस्ट गोइंग टू ग्रो प्लांट्स इन दैट, मतलब एक छोटी सी गार्डन बनाना चाहते हो। सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ एनिमल्स, व्हाट यू यूज टू डू, टिपिकली आप एक बैरियर को कंस्ट्रक्ट करते हैं जनरली वुड से या वायर से, सो दैट नोबडी, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम एनिमल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ऐसे इसके पापा ने क्या किया? ही इज़ गोइंग टू कट डाउन बैम्बू। बैम्बूज को कट करके उसी स्टिक्स से वो अपने घर के सामने या कहीं पे वो एक फेंस बनाना चाहता है। दैट्स वाई माई मदर इज़ एट द मार्केट सेलिंग फैंस टू बाई ऑयल फॉर आवर लैम्प। सो मेरी मम्मा मार्केट गई थी एंड वॉट शी इज़ डूइंग, शी इज़ सेलिंग फैंस। वो फैंस बेच रही है। फैंस मीन्स अपने घर की सीलिंग फैन से ऐसा मत सोचिए आप। हैंड फैन भी होता है ना, जो ऐसा वुड से बना हुआ, मीन्स ट्री की वो पत्तों से बना हुआ फ़ैन आपने देखा हो तो, सो ऐसा हैंड फैंस या प्लास्टिक का भी हो सकता है। वो बेचने गई है उसकी मम्मी गर्मी में, कभी लाइट नहीं हो तो हम उसी फ़ैन से ऐसा हवा देते हुए आपने देखा होगा। तो ऐसी फैंस भेजने गई थी मेरी मम्मी, ताकि वो पैसा आएंगे वो फैंस भेजने से, तो उस पैसे से वो क्या करना चाहते हैं? टू बाई ऑयल फॉर द लैम्प्स। मतलब ये वी नो दैट द बॉय इज़ फ्रॉम ए पुअर फैमिली बिकॉज हिज फादर वॉज अ पेजेंट, ही इज़ अ पेजेंट एंड डेफिनेटली उनके घर पे शायद इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होगा एंड दे हैव टू लाइट लैम्प्स इन द डार्कनेस। डार्कनेस में वो दिया जलाते हैं, सो उसके लिए भी ऑयल ख़त्म हो गया था उनके घर पे। सो दैट्स वाई हर मदर वेंट टू द मार्केट टू बाई ऑयल फॉर द लैम्प्स। वाओ, व्हाट एन आंसर है ना चिल्ड्रन? कितना अच्छा से बोला इसने। क्या बोला पहले? मेरे पापा डेड ट्रीज को, सॉरी लाइव, मतलब द ट्रीज, अच्छा खासा ट्रीज़ को कट करके, मतलब लिविंग ट्रीज़ को कट करके डेड वंस को प्लांटेशन करने गए थे, यही तो बोला। इसका मतलब क्या हुआ? वो बैम्बू ट्री को कट करके उसी से फेंस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और मम्मी हवा बेच रही है ताकि मून को ला सके, क्योंकि रात में जब अंधेरा होता है तो लाइट कौन देते हैं? मून ही। सो इनके घर पे मून कौन है? दिया है। सो फॉर इन ऑर्डर टू लाइट द लैम्प्स मीन्स दैट diyas at their home, they need some oil. So my mother went to buy sell the fans, and she wants to bring some oil for our lamps. What a answer. So rich man ने क्या बोला? A clever answer, exclamation mark देखिए। he just exclaimed, मतलब वो खुद ही सरप्राइज हो गया। अच्छा, इतना अच्छा से कोई सोच के जवाब देते हैं क्या? What a clever answer. clever means बहुत होशियारी आंसर दिया बेटा आपने, said the rich man. बट एज ही वॉकड होम, बोल के वो चला गया घर। बट फिर भी जब वो घर जा रहा था, एज ही वॉकड होम, ही थॉट, उसको एक ही थॉट अबाउट समथिंग। व्हाट इट इज़? द बॉय इज़ फुलिश इफ़ ही बिलीव्स दैट ए फ्लाई कैन बी अ विटनेस। अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये तो वैसी, फुलिश मीन्स थोड़ी सही में बोलो तो मूर्खता, मतलब वो जो बेवकूफ़ी होती है ना। ये बॉय तो बिल्कुल छोटा बच्चा है, ही डोंट नो एनीथिंग, दैट्स वाई ही हैज़ एग्रीड टू मेक अ फ्लाई एज अ विटनेस। तभी तो वो मान गया कि ठीक है, फ्लाई अपना विटनेस है। कौन सा फ्लाई आके बोलेगी कि हम दोनों के बीच में ऐसी बात हुआ? ये बॉय तो ना बहुत फुलिश है। ऐसा सोचते सोचते वो घर चला गया था।